Hello guys, welcome back to my channel. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to start the second book which is Vistas. 12th क्लास की Vistas के आज हम सारे चैप्टर्स एक एक करके सभी चैप्टर्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पहला चैप्टर जो है Vistas का विच इज़ द थर्ड लेवल, उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 45 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फॉर द अपकमिंग टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। तो इसका आंसर है ए, जैक फिने। ओके, सेकेंड इज हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो इसका आंसर है बी, चार्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज चार्ली नॉट एडमिट। तो इसका आंसर है डी, दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज ओनली 2 levels. Now question number 4 is what happened when Charlie reached when once he got into a mile long tunnel. तो इसका आंसर है सी, when he came up in the lobby of a hotel. ठीक है, तो फोर्थ का आंसर हो गया आपका सी. नाउ फिफ्थ इज व्हाट हैपेंस व्हेन वन डे चार्ली इज इन अ हरी टू कैच द ट्रेन। तो फिफ्थ के ऑप्शंस ये हैं और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी, ही रीचेस द थर्ड लेवल. Now question number 6 is what is the information booth at the third level made of. तो 6 का आंसर है ए, wood. Now question number 7 is what does Charlie realize when he finds everyone wearing old fashioned clothes. तो 7th का आंसर है सी, that he has reached the past. उसे ये realize होता है. Now question number 8 is how does Charlie make sure that he has reached the past. तो 8th का आंसर है डी, he sees the date on the current newspaper. Question number 9 is when Charlie knows that he has slipped into past, where does he want to go. तो इसका 9th का आंसर है डी, टू गेल्सबर्ग इलिनॉय. ओके, 10th is when did Charlie live in Galesburg. तो 10th का आंसर है in his childhood, A. 11th is Charlie wants to purchase tickets for. तो 11th का आंसर हो गया A, Galesburg. Question number 12 is why does the booking clerk threaten to get Charlie arrested. तो इसका आंसर है डी, he thought that the notes offered by Charlie were fake. Now question number 13 is how does Charlie come back to the present. तो 13th का आंसर है सी, he rushes from the booking window. Now question number 14 is to whom does Charlie talk about the third level. तो 14th का आंसर है both B and C. ओके, तो 14th का आंसर है both B and C. B is अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है और उस साइकेट्रिस्ट का फ्रेंड का जो नाम है वो है सैम वीनर. तो B and C both are correct. ओके, 15th question is what does Charlie psychiatrist friend think about Charlie when he talks about the third level. तो 15th का आंसर हो गया डी, Charlie has been daydreaming. 16th is why does Charlie buy old currency notes. तो 16th का आंसर हो गया सी, he wants to use the note in the third level. 17th is in which year of the past does Charlie want to go. तो 17th का आंसर है ए, 1894. Now 18th question is one of the Charlie's friends disappear, what is his name. तो उसका आंसर है ए, सैम वीनर. Now 19th question is how does Charlie come to know that Sam Wiener has slipped into the past. तो 19th का आंसर हो गया D, from an old day postage cover. Okay, 20 is in his letter what does Sam Wiener urge Charlie to do. तो 20 का आंसर हो गया B, to find the third level and come there with his wife. Okay,
नाउ 21 इज हु इज सैम वीनर, तो 21 का आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड बी। तो ए है चार्लीज फ्रेंड एंड बी इज सैम वीनर, उसका फ्रेंड भी होता है और वो पेशे से साइकेट्रिस्ट भी होता है। नाउ 22 इज व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ, तो इसका आंसर है सी, लूजा। ओके, 22 का आंसर हो गया लूजा। नाउ 23 इज हाउ ओल्ड वॉज चार्ली, तो 23 का आंसर हो गया बी, 31 ईयर ओल्ड। 24 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो 24 का आंसर हो गया अ प्लेजेंट, इसका आंसर है ए, अ प्लेजेंट विश दैट one wants to happen. Now 25 is what is the theme of the lesson, तो 25 का आंसर है A, human tendency of escapism through harsh reality of the present. Now moving on to the next page, 26 says what is the significance of 1894 in the lesson, तो 26 का आंसर है D, representing a peaceful romantic time. Now 27 is who was Sam in the third level, तो 27 का आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, अ डॉक्टर, अ फ्रेंड ऑफ द मेन कैरेक्टर, अ साइकाट्रिस्ट। ओके, 28 इज व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम, तो 28 का आंसर हो गया ए, टू कंसल्ट हिम फॉर द थर्ड लेवल इंसिडेंट एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट हैड हैपेंड विद हिम, राइट। नाउ 29 is what unusual thing did the narrator see at the Grand Central Station, तो 29 का आंसर हो गया सी, the third level. Okay, 30th is why was narrator at the third level, तो 30 का आंसर है D, as a result of stress and anxiety in his mind. Now 31st question is how did Charlie reach the third level, तो 31st का आंसर हो गया A, he takes a subway or corridor. Now 32 is what was the third level, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, एन इमेजिनेशन ऑफ द नरेटर्स माइंड। ओके, 33 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, सो 33 का आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, 34th क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, तो 34th का आंसर है बी, एनवलप विद स्टैम्प पोस्टेड ऑन द डे ऑफ इट्स रिलीज, जिस दिन एक स्टैम्प रिलीज होता है उसी दिन को हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। ओके, 35th इज व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन अ स्टैम्प कलेक्शन, तो 35 का आंसर है सी, अ फर्स्ट डे कवर। नाउ 36th इज व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही वाज इन द पास्ट इन 1894, तो 36 का आंसर हो गया ए, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर। 37 हु साइंड द लेटर, तो 37 का आंसर है बी, सैम। नाउ 38 व्हाट सैम हैड टू पे व्हाइल परचेजिंग द ओल्ड करेंसी, तो 38 का आंसर हो गया $800। ओके, ये चैप्टर में है $800। 39 इज अ मैन पुल्ड आउट अ डैश फ्रॉम हिज पॉकेट, सो इसका आंसर है अ गोल्ड वॉच, ए। नाउ 40 इज द एरिया वॉज लिट अप विद, तो 40 का आंसर है गैस लैम्प्स, ए। 41 इज देयर वर स्पिटून्स मेड ऑफ, तो स्पिटून्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम ऐसे थूकते वूकते हैं, मतलब पहले के जमाने में होते थे जब पान वान खा के लोग थूकते थे उसमें, ठीक है। सो दैट इज 41 का आंसर हो गया सी, ब्रास, ब्रास के बने होते थे वो। 42 इज अ न्यूज़पेपर सेड इट वाज द ईयर, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो कौन सा साल था 42, इसका आंसर हो गया बी, 1894। 43 is Sam reached the old Galesburg and settled himself as, तो इसका आंसर है 43 का डी, ट्रेडर। 44 देखते हैं, द टिकट क्लर्क सस्पेक्टेड चार्ली फॉर, तो 44 का आंसर है सी, टेंडरिंग द फेक करेंसी, ठीक है, कि वो उसे नकली जो पैसे हैं वो पकड़ा रहा है। Now 45th is Charlie was quite an ordinary man. From which place? He was from the New York. Okay, so these are the most important list of 45
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर द थर्ड लेवल विस्टास का पहला चैप्टर है, ठीक है। फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स और पोएम्स के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप MCQs फॉर द टर्म 1 करवा चुकी हूँ, ठीक है। वहां से जाके आप, या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टॉप MCQs की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फ्लेमिंगो या विस्टास के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो आप अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी देख सकते हैं और वहां से एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं। मिलते हैं विस्टास के सेकंड चैप्टर के मोस्ट अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, घंटे को बजा देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय इंग्लिश बाय जानवी, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।